watching the News Hour Special Edition. Welcome back. Some top leaders of the Maharashtra Vikas Aghadi are in the eye of another storm. This after leader of the BJP, Siddharth Shirole, posted a video accusing the Maha-Vikas Aghadi government of damaging sports infrastructure in Pune by parking their cars on the sports track of Shiv Chhatrapati Sports Complex, paying scant regard for sporting infrastructure, which, by the way, is worth crores. These netas, which included NCP chief Sharad Pawar, actually drove their cars inside the stadium and parked them on the athletic track. Mind you, there was ample parking space available all around the stadium. But it seems that taking those few steps to spare them the inconvenience and the labor of walking those few steps led to these vehicles then being driven right onto the athletic track. The BJP says this has damaged the track, and a political war of words has now been sparked between the NCP and the BJP. In fact, Sports Minister Kiran Rijiju has also tweeted about it, saying that at a time when sports infrastructure is anyway ignored in the country, so much money and effort is being spent in trying to upgrade the sporting infrastructure in our country. This is nothing more than high-handedness, VVIP racism, and actually a damage to the infrastructure. Guru Prakash, as a spokesperson of the BJP, joins us. But I want to put the first question to political analyst Kishore Tiwari. Mr. Tiwari, how do you explain this? Padamja, my sport commissioner from Pune has clarified that only Sharad Pawar's car, due to his ill health and there is a problem with his leg, was allowed on a cemented track. But this matter was brought to the notice that the security, because he is entitled for a Z security and two persons were there were Y security. They parked their vehicles on the track, and this matter was brought to the notice by Siddharth Shirole ji. And my minister has taken a cognizance, and all cars were removed. So one by one, Kishore Tiwari जी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ शरद पवार जी की गाड़ी गई थी. एक बार वो तस्वीरें दिखा देते हैं ताकि लोग देख ले. People can see for themselves how many cars were exactly present. So either you are saying that Mr. Pawar was traveling in 15 cars, or there were more than. स्पोर्ट्स कमिश्नर ने कहा है कि केवल एक गाड़ी अलाउ की गई थी सीमेंट ट्रैक पर, लेकिन आपके पिक्चर से मुझे मालूम पड़ता है कि बहुत सारी गाड़ियां आई थी, जिसके लिए मेरे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने स्ट्रिक्ट एक्शन ली है और हमने अपडेट भी किया है. चलो ठीक है, ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने खेद भी प्रकट किया है, लेकिन हमारा नसीब अच्छा है और ट्रैक खराब नहीं हुआ है गुरु प्रसाद. लेकिन बीजेपी के जैसे चलिए नसीब अच्छा है. चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर. गुरु प्रकाश, वी शुड बी थैंकफुल कि हम सबका कलेक्टिव नसीब अच्छा है. और ठीक है, गाड़ी गई थी, वो भी क्योंकि उनको तकलीफ ना हो शरद पवार जी को, क्योंकि उनकी तबीयत खराब है इसलिए गई थी. पर कुछ हानि तो नहीं हुई ना, कोई नुकसान नहीं हुआ. ऐसा मत बोलो पदमजा, तुम सटायर कस रही हो. जरा सुनिए जरा, सुनने का धैर्य रखिए भैया. ये देखिए, आपको मुझे सफाई नहीं देनी है, आपको सफाई देनी है इस पूरे देश के स्पोर्टिंग फ्रेटर्निटी को. आपको सफाई देनी है इन देश के युवाओं को जो ओलंपिक में जाकर के देश के लिए मेडल जीतने की आकांक्षा रखते हैं. आपको सफाई देनी है करोड़ों ऐसे युवाओं को जिनकी महत्वाकांक्षा है देश को सम्मानित करने की. आपको सफाई गुरु प्रकाश को नहीं देनी है, सफाई आपको देश को देनी है. आप बार बार बोलते हैं कि शरद पवार जी का, शरद पवार जी की स्थिति नहीं ठीक थी, हम सब सम्मान करते हैं. शरद पवार जी एक वरिष्ठ राजनेता हैं, लेकिन एलिवेटर की व्यवस्था थी वहां पे, एलिवेटर की व्यवस्था की इसको स्वीकार करना होगा आपको. देखिए, दुख की बात यह है कि जो आप लोगों का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है ना, ये जो वीआईपी कल्चर है देश में 7 दशकों तक, और आपकी गलती नहीं है, देश में 7 दशकों तक ऐसी स्थिति थी. एक परिवार का शासन था, उस परिवार के दामाद का नाम एयरपोर्ट पर लिखा रहता था कि भाई इनको नहीं हुआ है. ये आपकी बात जब तर्क नहीं होगा, बीच में बोल रहे हैं. आपके बीच में मैंने नहीं बोला. एमएलए बीच में मत बोलिए किशोर तिवारी जी, बीच में मत बोलिए.
बीच में मत बोलिए। एंड एक सेकंड बिफोर यू कंटिन्यू गुरु प्रकाश, आप जो बार बार बोल रहे हैं इंटेंशनली नहीं हुआ किशोर तिवारी जी। रेस ट्रैक एथलीट्स के लिए होता है, इंटेंशनली हुआ ना। अगर 15 गाड़ियां रेस ट्रैक पे जा रही हैं तो उनका इंटेंशन था कि जिस जगह पे उनको नहीं होना है वहां वो जाए। ऐसा तो हो नहीं रहा था कि वो हाईवे पे चल रही थी, अचानक बीच में रेस ट्रैक आ गया और वो वहां पहुंच गई। वो इंटेंशनली ही पहुंची है वहां पर, और उससे डैमेज होता है। आप किसी भी एथलीट से पूछिए। जेड सिक्योरिटी वाले प्रोटोकॉल को ना तोड़ते हुए, किसी को ना सुनते हुए करते हैं, लेकिन जब ख्याल में आया तो सारे सीमेंटेड ट्रैक पे ले लिए गए। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए ये आप गलत तर्क दे रहे हैं। आप जहां तक सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जस्ट ऑन द इशू ऑफ सिक्योरिटी, गुरु प्रकाश बता दीजिए कि जिन लोगों का जेड सिक्योरिटी होता है उनके सिक्योरिटी वाले कह सकते हैं कि आप स्टेडियम के अंदर पहुंच जाइए, तो उनको ये अलाउड होता है। गुरु प्रकाश। किशोर तिवारी जी कितना फ्लॉड आर्गुमेंट है। आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आपके पास इस चीज के बचाव में ना तो कोई तर्क है ना तो कोई तथ्य है। देखिए, कम से कम आप लोगों को यदि अपनी साख बचानी है तो एक हाई लेवल इंक्वायरी तुरंत ही शुरुआत होनी चाहिए, और उस इंक्वायरी से कितना डैमेज हो उसका असेसमेंट होना चाहिए। भाई देखिए, ये देश की संपदा, इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी, ये एक सार्वजनिक संपदा है। ये एनसीपी के पवार परिवार की या उद्धव ठाकरे परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। जो आप लोग एथलेटिक ट्रैक पे बड़ी बड़ी गाड़ियां ले आएंगे, और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाता क्या है, आप लोगों ने राजनीति में परिवार और कारोबार को संसाधित करने का काम किया है। चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। सिर्फ एक परिवार का राज चलता है, और वो परिवार अपना समझता क्या है, आपको महाराष्ट्र का मठाधीश समझता है। ध्यानपूर्वक सुनिए, सिर्फ माफी मांगने से नहीं होगा। आप आज बिल्कुल तार्किक नहीं लग रहे हैं। आमतौर पर आपके पास तर्क होते हैं, लेकिन आज आप तर्क विहीन हो गए हैं। आज आप इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, और बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। अगर अभी भी आप लोगों को अपनी साथ बचानी है तो अभी महाराष्ट्र सरकार को बोलिए इंक्वायरी आए, और इंक्वायरी से डैमेज हुआ है उस डैमेज का असेसमेंट हो और उसकी भरपाई हो जानी चाहिए। और ना सिर्फ इंक्वायरी हो किशोर तिवारी जी, जो भी डैमेज हुआ है वो सरकारी पैसे से नहीं, वो पर्सनल पैसे से, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां वहां पर दौड़ाई हैं उनके पैसे से उसको रिपेयर किया जाए। देखो पदमजा, सारी गाड़ियां सरकारी थी, एक बात। दूसरा, मैं आपको बताता हूं कि गुरु प्रसाद ये जो आरोप लगा रहे कि शरद पवार के आदेश से 15 गाड़ियां आ गई, तो कितना भद्दा आरोप है। देखिए, प्रोटोकॉल में अगर चूक हो जाती है तो क्या वीवीआईपी को आप गिल्टी समझेंगे? लेकिन मेरे मिनिस्टर ने तुरंत ऑर्डर दिए, मेरे स्पोर्ट कमिश्नर को पूरा क्लेरिफिकेशन देना पड़ा, और हमने, मेरे हेल्थ मिनिस्टर ने केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री के राजू, हमारे किरण जी रज्जू है, उनको फोन करके बताया कि ये सब इसके बाद नहीं होगा। अब मुझे बताओ गुरु प्रसाद जी, इसके अलावा क्या करें? गाड़ियां लेके पुलिस वाले आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर आ गए, तो राजनेता जवाबदार हो गए। कल्चर की बात आ गई, 70 साल का कल्चर निकाल लिया। अरे आप जो कर रहे हो ना, ये सब चीजें भद्दी लगती है। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं तर्क छोड़ के बात कर रहा हूँ। गुरु प्रसाद जो कुछ भी अपन खेल के लिए कर रहे हैं ना, ये बहुत ही कम है, ये मैं कबूल करता हूँ। और जो कुछ इस प्रकार का काम हुआ उसका समर्थन ना ही तो मेरा क्रीड़ा मंत्री करता है, ना ही तो शरद पवार जी करते हैं। अरे शरद पवार जी 85 की उम्र में समर्थन कोई नहीं करता, तो फिर गाड़ियां अंदर कैसे पहुंच गई? किशोर तिवारी जी, जब गाड़ियां आ रही होती हैं तो आदमी को दिखता है ना कि आप कहां पर जा रहे हो, और पार्किंग और ट्रैक में तो बहुत फर्क दिखता है। पर बात का बतंगड़ आप क्यों बना रहे हैं गुरु प्रकाश? इट इज एट बेस्ट अ माइनर इन्फ्रैक्शन, व्हाई टर्न इट इनटू अ क्वेश्चन ऑफ कि कुछ जानबूझकर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय किया गया है? नहीं पद्मजा, आज तिवारी जी थोड़े आउट ऑफ टच लग रहे हैं, और आउट ऑफ टच लगने के कारण है इन्होंने अपने एक सेंटेंस में मैं, मेरा मंत्री, मेरा परिवार, मेरी पार्टी। तिवारी जी, आप सामाजिक जीवन में हैं, आप अपने ब्याह पे बात नहीं कर रहे, अपने संगठन के ब्याह पे बात कर रहे हैं। वो आपका मंत्री नहीं है, महाराष्ट्र का स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और उसी प्रकार उसको जिम्मेवारी निभानी चाहिए। मेरा मंत्री क्या होगा? मैं बोलूं, इसी मानसिकता से लड़ाई है, इसी मेंटालिटी से लड़ाई है जिस देश में 70 साल तक हावी थी। किसने अधिकार दिया आपको? उस एथलेटिक ट्रैक पे देश के हर नागरिक का हक है, उस एथलेटिक ट्रैक पे देश के हर युवाओं को अपने सपने को साकार करने का हक है। बड़ी बड़ी गाड़ियां आ जाती हैं,
हम समझते हैं, हम सम्मान करते हैं कि भाई शरद पवार जी वरिष्ठ राजनेता हैं, 85 वर्ष के हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको निश्चित रूप से कुछ समस्या होगी। तो एलिवेटर की व्यवस्था थी, एलिवेटर थे वहां पे, एलिवेटर का उपयोग किया जा सकता था। तो जानबूझ के ये वीवीआईपी कल्चर को जो आपने पुनर्स्थापित करने का काम किया, उसको मजबूत करने का काम किया है, और आपके हर एक सेंटेंस में, हर एक शब्द से वो टपक रहा है। मुझे दुख इस बात का है। दूसरा बात, आपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स का नाम गलत लिया था, आप उनका नाम सही से लीजिए। उनका नाम श्री किरण रिजिजू है। ये नाम के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। आपके हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, हम लोग डिबेट कर सकते हैं, लेकिन नाम के साथ आप लोग को उपयुक्त व्यवहार करना चाहिए। पद्मजा, एक मिनट। Okay. देखो, Okay, I'm going to leave it at that. I think the pictures speak a lot about what exactly was the mindset behind what happened. I'm out of time, so I'm going to thank you over there, both gentlemen. But any infrastructure, if damaged at all, comes at taxpayers' cost, and it should be repaired not at the taxpayers' cost again, but at the cost of those who've caused the damage. In that hope, thank you very much, both gentlemen. Quick break. In fact, more breaking news coming in. The breaking news that we are getting right now is about Twitter, and it's a grievance officer, the interim resident grievance officer who had been appointed just a few days ago for India, has stepped down, leaving the microblogging site without one as mandated by the new IT rules. Times Now's Amit is joining us live on this story. Amit, क्या बता सकते हैं कि इसके पीछे वजह क्या दी गई है? अभी जो जानकारी मिल रही है कि पीटीआई के हवाले से खबर आई है, लेकिन उसमें कोई वजह नहीं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 25 तारीख जब से नया आईटी रूल लागू हुआ है देश में, इसके बाद जब आखिरी बार जब नोटिस भेजा गया था, तीसरा नोटिस भेजा गया था ट्विटर को, तब उन्होंने कहा था कि कंप्लायंस ऑफिसर बहुत जल्दी अपॉइंट किया जाएगा ग्रीवेंस ऑफिसर के तौर पर, अंतरिम ग्रीवेंस ऑफिसर के नाम पर। उनका नाम जो ट्विटर का जो ऑफिस का जो वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ था, लेकिन आज उनका नाम हटा दिया गया है। किस वजह से उन्होंने छोड़ दिया ये नहीं बताया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मौजूदा हालात है, जिस तरह से सरकार और उनके बीच में गतिरोध है, अब वजह क्या है ये ट्विटर की तरफ से जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ऐसे वक्त पर एक ग्रीवेंस अफसर, क्योंकि 3 चीजें कही गई थी, ग्रीवेंस अफसर होना चाहिए, कंप्लायंस अफसर होना चाहिए और एक नोडल पर्सन होने चाहिए, जो कि तीनों रेजिडेंट होने चाहिए भारत के। लेकिन ऐसे वक्त पर, क्योंकि उन्होंने बाकी 2 का अपॉइंटमेंट अभी हुआ भी नहीं था, सिर्फ एक व्यक्ति का नाम था, धर्मेंद्र चतुर, उनका भी नाम अब हटा दिया गया है। वजह नहीं दी गई है, लेकिन निश्चित तौर पर एक कहीं ना कहीं एक अंदर आप ट्विटर के भीतर एक प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि सरकार से सीधे सीधे लड़ाई चल रही है, कन्फ्रंटेशन चल रहा है। मुझे लग रहा है ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि उन्होंने ये पद छोड़ा होगा, लेकिन वजह ट्विटर की तरफ से फिलहाल अभी नहीं दिया गया है। अमित, ये तो वो हालत हो गई कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। एक तरफ ट्विटर के खिलाफ एफआईआर किया गया है, दूसरी तरफ इंटरमीडिएरी स्टेटस चला गया, तीसरा उन्हें कहा जा रहा है फुली कंप्लायंस कीजिए, और जो एक अपॉइंटमेंट इंटरिम किया गया था उन्होंने भी अपना पद छोड़ दिया है। लेट्स सी हाउ दिस डेवलप्स एनी फर्दर। फॉर द टाइम बीइंग, अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सारी जानकारी देने के लिए। All right, that's it then on this edition, the special edition of News Hour from me. I will see you tomorrow at the same time. Thanks for watching. The News Hour Special Edition.